Good morning, everyone. I hope everyone is doing well and all good. In our last lectures, we discussed about the concept of cost accounting and we discussed the whole concept of cost sheet. I hope it was clear to you all who attended the lectures. Today, we are going to study the second concept in our cost accounting, which is related with the material costing. When we discussed the cost sheet, basically we have three contents in costing, which is the direct cost and the indirect cost in totality. दो partitions थे जिसमें कि we have direct material, direct labor and direct expenses, which is the main content of the prime cost, to which we add indirect overheads या indirect expenses, factory के office and administrative selling distribution expenses हम add कर रहे थे, and we have the total cost of production and cost of sales. Now one of the main content of the total cost or the prime cost is the material cost. When we talk of the material cost, it consists of both the parts. One is the direct material cost and the other one is the direct material cost. Uh, I hope PDF is clearly visible to you all. Now, starting with the material cost, we are talking basically of the direct material and the indirect material. As we have already discussed, direct material is basically the units of raw material which can be directly identified or allocated with the production process, and normally they become the part of the final product. And once we are using the material which cannot be directly related to the production या फाइनल प्रोडक्ट से हम उसको रिलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, एंड विच normally is not the direct part of the output or the final product, that is the indirect material. And both these kind of materials, they play a very significant role in the calculation of cost, and we have to take care of any kind of loss, any kind of wastage or spoilage or damage to the material, either direct material or indirect material, because when we are talking of any business is there just to earn the profit, and everyone wants to maximize the profit. Now, what options do we have to maximize profit is either we reduce the cost so that we can increase our profit, और वी कैन इंक्रीज दी सेलिंग प्राइस. तो एक ऑप्शन हमारे पास सेलिंग प्राइस है, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो सेलिंग प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं. कॉस्ट प्राइस एक ऐसा फैक्टर होता है जो कुछ हद तक हमारे एफिशिएंसी, हमारे स्मूथ फंक्शन पे डिपेंडेंट है, and to certain extent we can try to reduce or control the wastage or reduce the cost to enhance the profitability. Now, when we talk of the inventory is basically we are talking of the stock of raw material or the stock of work in progress or the stock of finished goods. We already have discussed all these things. Now, why we have to put the focus for the reduction in the cost of the raw material or the inventory? What is the main objective or the aim behind the inventory control? Now, when we talk of the efficient inventory management system, it is basically done just because it's playing a very significant role or vital role, because when we are talking of the efficient management of inventory or the stock level in our organization, we are saying that we are able to maintain the sufficient stock of raw material in our organization every time. And when we have the maintenance of sufficient stock in our organization of the raw material, that means we are talking that at any point of time our production process will not be adversely affected just because of the non availability of the raw material. मैं अगर ये कह रही हूँ कि मेरे पास रॉ मटेरियल सफिशिएंट क्वांटिटी में रखा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्टली ये वाली बात मैं कह रही हूँ कि किसी भी टाइम पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट या प्रोडक्शन इंटरप्ट सिर्फ इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं है. I have sufficient supply of stock in my organization. I have maintained a sufficient level of raw material in the organization.
which ensures that there will not be any kind of interruption in the production process. एक एडवांटेज तो मेरे पास ये हो गया कि मेरी प्रोडक्शन पे कभी भी इम्पैक्ट नहीं आएगा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का, स्मूथ फंक्शनिंग मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस की चलती रहेगी। दूसरा जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का, द पर्पस इट सॉर्ट्स आउट इज दैट once we have the efficient system of inventory control or inventory management in the organization, we can minimize the investment we have to do in the inventory, just because we know what level of inventory or what level of raw material will be sufficient for us for a particular time period to have a smooth production process। कितना मुझे मेंटेन करके रखना चाहिए इन्वेंट्री अपने पास, जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में एक पर्टिकुलर टाइम तक मुझे दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही जब मैं रॉ मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं जो मेरा मैनेजमेंट सिस्टम है इन्वेंट्री का, वो इतना अच्छा है, एफिशिएंट है कि द मोमेंट आई एम यूजिंग द रॉ मटेरियल, आई नो how many units are there in the organization, in the stock, how many units are being required, and when I'm supposed to place the next order for the raw material। उसके अलावा में मैं कब ऑर्डर प्लेस करूँ, कितनी यूनिट्स का प्लेस करूँगी जो मुझे इकोनॉमिकल पड़े, बिकॉज व्हेन आई परचेज द रॉ मटेरियल इन बल्क क्वांटिटी, उसकी वजह से मुझे क्या हो सकता है, मुझे डिस्काउंट मिल सकता है। अगर बल्क क्वांटिटी में लूँगी तो जो उसकी कॉस्ट होगी ओवरऑल में वो रिड्यूस हो जाती है पर यूनिट कॉस्ट। जितनी कम यूनिट्स परचेज करूँगी, 11th आवर परचेज करूँगी, आई मे एंड अप स्पेंडिंग मोर अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अगर मेरा अच्छा है तो वो भी स्मूथली और एफिशिएंटली काम हो रहा है। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि मैं एक एफिशिएंट लेवल या सफिशिएंट स्टॉक यू कैन से रॉ मटेरियल का मेंटेन कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, कि कितना होना चाहिए, कब कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। अगर मैं रॉ मटेरियल जब ऑर्डर कर रही हूँ, ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ सप्लाई करने के लिए, तो व्हाट शुड बी दी क्वांटिटी विच शुड बी ऑर्डर्ड सो दैट इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर मी। उसके बाद जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, मैंने ऑर्डर मंगा लिया, मेरे पास रॉ मटेरियल आ गया तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, होल्डिंग कॉस्ट भी है इन्वेंट्री की। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप इन्वेंट्री कंट्रोल में कर रहे हैं। And once we are talking of the efficient management system of inventory, we are trying, or we can achieve the target to minimize the investment which is done in the stock or in inventory, so that the overall cost of holding the inventory gets reduced। तो मेरी कहीं पे भी उसकी वेस्टेज नहीं हो रही है, ना ही रॉ मटेरियल की, और ना ही रॉ मटेरियल में जो मैंने पैसा ब्लॉक कर दिया है वो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगा के रख लिया, अब आइडल पड़ा हुआ है कि यूज़ तो मेरा होना 6 महीने बाद, मैंने सिर्फ अभी मंगा के रख दिया है। तो जब अगर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक मंगा के रखा बिकॉज ऑफ मिस कैलकुलेशन, और मैंने अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं सही से की हुई है, मतलब ऐसे ही रैंडम कोई भी मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तो दैट मे लीड्स टू अ सिचुएशन व्हेन आई हैव अ सिचुएशन ऑफ ओवर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा मैंने स्टॉक को अपने पास इन्वेंट्री को स्टॉक में रखा हुआ है मंगा कर। अब उसमें होगा क्या, मेरा पैसा उसमें लगा तो पैसा मेरा उसमें ब्लॉक हो गया। टिल द टाइम दैट इन्वेंट्री इज बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ फाइनल प्रोडक्ट एंड इट इज़ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, मेरा पैसा उसमें ब्लॉक रहेगा। तो मेरे लिए बाकी चीज़ों के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, लिक्विडिटी, क्योंकि मेरी वहाँ पर अटक गया मेरा कैश, तो लिक्विडिटी पोजीशन उतनी एक्सटेंड तक कम हो रही है। दूसरा, अगर मैंने स्टॉक ज़्यादा मंगा लिया है तो समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल दैट जो स्टॉक ओवर स्टॉक मैंने किया हुआ है, जो इन्वेंट्री का ओवर स्टॉक किया हुआ है, एक्स्ट्रा मैंने यूनिट्स मंगा के रख ली हैं, द प्रोडक्ट और द रॉ मटेरियल और द इन्वेंट्री मे बी सच ऑफ सच नेचर दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड, इट मे गेट डैमेज्ड, डिस्ट्रॉय हो सकती है, लापरवाह है क्योंकि बहुत सारा स्टॉक मंगा के रख लिया है तो उसकी वजह से वो ख़राब हो गया। और अगर वो ख़राब हो गया देन इट इज़ ऑफ नो यूज़ एंड इट कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो मेरी कॉस्ट मैंने इनकर की जो, वो मेरी सारी की सारी वेस्ट होगी। तो बजाय कॉस्ट कंट्रोल करने के जो मेरा फोकस था, वो एक्चुअली हुआ क्या, वेस्टेज हो गई, जस्ट बिकॉज आई हैड द सिचुएशन ऑफ ओवर स्टॉकिंग।
इसी तरह दूसरी सिचुएशन हो सकती है जब मैंने सिस्टम सही से मैनेज नहीं किया हुआ है एंड आई डोंट नो हाउ मच यूनिट्स शुड बी देयर इन दी स्टॉक सो दैट वी हैव the efficient or smooth functioning of the production process, and I may end up having a situation where we have a situation of understocking. अंडरस्टॉकिंग का मतलब है कि जितना स्टॉक की मुझे ज़रूरत थी मेरी कैलकुलेशंस गलत हुई या मैंने की ही नहीं और उसकी वजह से मैंने सिचुएशन क्रिएट कर दी जहाँ मेरे पास एक्चुअली स्टॉक बचा ही नहीं है। अब स्टॉक अगर बचा ही नहीं है तो व्हाट विल हैपन, स्टॉक की शॉर्टेज हो जाएगी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट देयर अराइजेस shortage of the raw material, that means I may end up in a situation when the production process is badly impacted. तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो रही है और हो सकता है कि मैंने इतनी ख़राब सिचुएशन क्रिएट कर दी है लापरवाही से कि प्रोडक्शन रुक ही गई है जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव दी रॉ मटेरियल। मैंने सोचा कि रॉ मटेरियल तो मैं जब चाहे परचेज कर सकती हूँ, तो मैंने रॉ मटेरियल मंगा के ही नहीं रखा, कंज्यूम करती चली गई एंड आई एंड अप विद द शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल। मैंने अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए सप्लायर को कॉल किया एंड ही सेड कि ही कैन नॉट सप्लाई गुड्स फॉर 1 वीक। अब 1 हफ्ता 2 हफ्ते 10 दिन 2 दिन भी अगर वो रॉ मटेरियल मुझे अगर नहीं दे रहा है एंड आई डोंट हैव रॉ मटेरियल इन माई स्टॉक, तो व्हाट विल हैपन, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज स्टॉप, प्रोडक्शन मैं कर ही नहीं रही हूँ या मेरे पास रॉ मटेरियल कम रह गया है, जो मैं मैन्युफैक्चर कर सकती थी यूनिट्स में उतनी नहीं कर पाई, तो इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट मे be decreased just because of the understocking of the inventory, or it may be stopped just because of non-availability of the stock. These all are the reasons we need to have the efficient inventory management system so that we can maintain the sufficient stock of raw material, ensuring that that the production process is going on smoothly and efficiently and there is no interruption in the production process. Along with that situation that the overall cost of holding the inventory is minimized just because we have the sufficient stock with us, and the units we are ordering in our different orders, they are most economical for us, and we are just reducing the cost. These are the two objectives of having your efficient inventory management system. And the manager has to have a balance between these two objectives. Now the objectives of the material control are as I told you that no understocking should be there. That means the main objective of the material management is to ensure that an uninterrupted supply of material should be there without any kind of delay, so that we don't have any adverse impact on the प्रोडक्शन प्रोसेस। वो कहीं पे भी रुकनी नहीं चाहिए, कहीं कम नहीं होनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव द रॉ मटेरियल विद अस, अदरवाइज विल बी एट अ लॉस। इसी तरह ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर स्टॉकिंग अगर होगी तो हमारी जो cost है that will not be reduced and the wastage will be there, the loss will be there, and will be ending up investing our funds and blocking our funds in the overstocked material. Then the third objective is we are talking of the economical purchase. Economical purchase means that when we are talking of the efficient inventory management system, it basically helps the management or the managers to ensure that whenever we are placing the orders for the raw material, we are placing the order in the most economical way or at the most economical cost. So हम calculations करते हैं, we have different techniques on the basis of which we calculate how many units should be ordered and when it should be ordered, so that we have the most economical purchase, and we take the benefit of the discounts in case we are having the bulk purchases, or we have some different kind of offers which reduces the cost. Then the next objective of the inventory management system is that we may have the focus on the superior quality product, because sometimes the product is being sold at any kind of quality, तो वो inferior क्वालिटी का सुपीरियर क्वालिटी का दोनों तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाते हैं, बट व्हेन वी आर हैविंग अ फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स क्वालिटी,
then just because of the best or the efficient inventory management system, the consideration or the focus can be put on the quality of the product, so that we can maintain the quality by just using different kind of techniques or different kind of mechanisms, different kind of tests in our labs, and other techniques can be used to just check the quality. Next is the wastage is being reduced, and the losses are reduced to certain extent by having efficient storage system in the firm. We have different techniques, जिसमें जैसे एक जो बहुत famous है, which is economic order quantity. We'll discuss this in detail in later lectures. These kind of techniques and proper authorization in the issuance of material, it helps the management in reducing the loss, especially the abnormal loss we are talking of. It reduces the pilferage, it may reduces the other wastages like leakages, yeah, damages or destruction to any kind of inventory, because we are using different techniques, we are using mechanisms, or we are paying attention to the inventory which is more valuable to us. तो उसकी वजह से एक एफिशिएंट सिस्टम होने की वजह से इन्वेंट्री का जो वेस्टेज हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, वो हम कहीं ना कहीं एक हद तक रोक सकते हैं, रोक पाते हैं, इन केस वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम. Then next objective is that timely accounting and reporting is there. The up-to-date information and complete information about the inventory is given by the departments to the top management, so that they can take decisions in case they are required to take some kind of decisions, and it helps them in having more informed and correct decisions for the बिजनेस. अगर आपको बिजनेस में जब भी आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो किस क्वालिटी का आपको परचेज करना है, किस प्राइस पे आप परचेज कर सकते हैं, कितना आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो टाइमली यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन विद ऑल द पीपल, सो दैट टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस कैन बी टेकन बाय द मैनेजमेंट, for which will be overall helpful in the helpful to the organization. Now the material management involves different kind of efficient functions we are talking of. These are the purchase of material. Material जब हम purchase कर रहे हैं तो it's basically talking of when the material should be purchased, how many units should be ordered, किससे हमें लेना है, किस क्वालिटी का लेना है, ये सारा का सारा डिटेल आपका परचेज ऑफ मटेरियल में आ जाता है. रिसीविंग ऑफ मटेरियल, एंड व्हेन वी टॉकिंग ऑफ मटेरियल परचेजेस की जब हम बात करते हैं, वी हैव ऑर्डर बुक ऑल्सो, कि हमने कितना ऑर्डर प्लेस किया है, किस सप्लायर को हमने कितनी यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, एंड व्हाट इज द क्वांटिटी विच शुड बी ऑर्डर्ड, बिकॉज वी वांट टू हैव द economical purchase. Then we are talking of the receive of material. Receiving of material, again the employee will be will be responsible to receive the material. He will be creating the vouchers or the receipts की इतनी units, इतनी quantity मैंने इतने इस quality की इतनी units मैंने receive की हैं organization में, and they have the proper stock. They have maintained the proper register for all these information, and up to date information is also there. तो ये सारे के सारे जो आपके functions हैं, they should all be efficient enough so that you have the proper efficient inventory management system. किसी एक में भी कहीं प्रॉब्लम आएगी तो उसका इम्पैक्ट सब पे ही आ जाएगा. क्यों? क्योंकि एक से सब दूसरे जुड़े हुए हैं, सब इंटर रिलेटेड हैं, सबकी जो इन्फॉर्मेशन है इट शुड बी टाइमली. किसी एक ने कुछ गड़बड़ की तो बाकी सब जगह ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी. देन यू मे हैव द इंस्पेक्टर्स और द क्वालिटी मैनेजर्स हु pay attention to check the quality, and they inspect the material they have received in the organization. उसमें वो जब भी रिसीव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल फ्रॉम द वेंडर, वी जस्ट चेक द क्वालिटी विच वाज ऑर्डर्ड, कितनी क्वांटिटी मिली, उसके अलावा में आपने किस क्वालिटी का ऑर्डर दिया था, वो क्वालिटी आपको मिली है या नहीं मिली है,
और कोई डैमेज तो नहीं है, कोई डिफेक्टिव पीस तो नहीं है. दीज आर ऑल काइंड ऑफ इंस्पेक्शंस आर बीइंग डन सो दैट इन केस आपने ऑर्डर किया एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एंड समहाउ बाय चांस या इंटेंशनली और अनइंटेंशनली द सप्लायर है सप्लाइड यू द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और आपने सुपीरियर क्वालिटी का मंगाया था. अगर आपने इंस्पेक्शन की ही नहीं, आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, what will happen? You will end up having the inferior quality product. तो उसका इम्पैक्ट आपकी कंपनी की सेल्स पे भी पड़ेगा, आपकी कंपनी की इमेज पे भी पड़ेगा. तो पीपल दे हैव the focus on the inspection of the material also so that you end up having the quality product which is being required. And then we are talking of the storage of material, issuing of material to the production process, how many units are being required by the production department and how many units are issued to them, so that you are basically indirectly talking of the efficiency of the worker who is using the raw material. अब मान लीजिए, I'm just taking a example, when we are using let's say आप एक रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इफ आई टॉक ऑफ लेट्स से द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स. अब शर्ट्स अगर बना रही है तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो आपके पास कपड़ा आया है उसकी कटिंग होगी. अब कटिंग भी अगर जो आपके टेलर्स हैं जो कटिंग कर रहे हैं, इफ दे आर एफिशिएंट एनफ, दे कैन रिड्यूस द वेस्टेज, क्योंकि वो जो कटिंग बचेगी वो आपके लिए वेस्ट है, आप कुछ यूज़ तो उसका कर नहीं रहे हो, या तो स्क्रैप होगी या आपने कोई इनोवेटिव आइडिया लगा लिया एंड इफ इट इज़ बीइंग यूज्ड. लेकिन अगर आपका जो टेलर है जो कटिंग कर रहा है, जो वर्कर है, वो अगर स्किल्ड नहीं है, उसको आता ही नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा काट के उस पर वेस्ट कर दे, तो आपका फोकस उस पर बाय डिफॉल्ट हो जाता है. इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ द इशुएंस ऑफ मटीरियल फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनको कितनी यूनिट्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, अब उस पर अगर मैंने फोकस रखा ही नहीं, मैं केयरलेस हो जाऊँ, वट एवर द यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इज बीइंग आस्क्ड बाय देम, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग देम, और उस पर कंट्रोल नहीं रखा, तो व्हाट विल हैपन in case one of the person is there who is not skilled or efficient enough to reduce the wastage or the cutting or which is remaining after the material is being used for the shirt, so what will happen, he may end up कि कोई एक कटिंग अगर ठीक नहीं हुई उसको फेंक दिया, क्योंकि देखने वाला तो कोई था ही. मगर अब यहाँ पे क्या है, जब हमारा मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है इन्वेंट्री का, तो आपने हर चीज़ पे फोकस रखा हुआ है. आपको पता है कि हाउ मेनी शर्ट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग हाउ मच ऑफ द लेंथ ऑफ द मटीरियल, और अगर उसमें वेस्टेज किसी वजह से हुई, देन यू कैन जस्ट मेक इट आउट कि ये कहाँ गड़बड़ हुई है, सो दैट यू कैन कंट्रोल दैट वेस्टेज. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में आती हैं. आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू. I'm just skipping this query. Different kind of records are being maintained by the your inventory management department just to have a proper and efficient management system of inventory, and they try कि हर चीज़ को उनका focus है, apart from the number of units which is supposed to be manufactured, apart from the raw material units which is required. बैकग्राउंड में वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट नो. ओके अभिषेक, यू हैव आस्क्ड मी कि स्क्रीन आगे चेंज नहीं हुई है. आई एम चेंजिंग द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द लेक्चर आई एम टेकिंग. आई डोंट नो कि व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज. एंड बैकग्राउंड में आप लोगों को नॉइस किस वजह से आ रही है, आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ तो एकदम शांति से मैं पढ़ा रही हूँ. मे बी प्रॉब्लम कहीं पे है, आई डोंट नो. स्टिल you have some you are getting background noise from my side, I'm not sure. Okay, now I'm just coming directly to the different kind of techniques we have in the inventory control system. The one of the major or main inventory control technique is the ABC technique. We have different techniques which play a very important role in having the efficient system to control the material cost in the organization. And every raw material which is used in the organization
has different level of value और different level of significance to the organization. मैं अगर एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, उस प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, तो हर रॉ मटेरियल की कॉस्ट, हर रॉ मटेरियल की वैल्यू, हर रॉ मटेरियल की क्वालिटी डिफर करेगी अपने आप में, और सबकी वैल्यू मेरे लिए क्या है वो भी डिफर करेगी। कोई बहुत कीमती चीज़ है, बहुत महंगी है, तो मेरा फोकस उस पर ज़्यादा होगा। कोई कम कीमती है, उस पर जिसकी वैल्यू कम है, उस पर मेरा फोकस कम होगा। नो डाउट कि पैसे की कीमत हर जगह है, एक एक रुपए की कीमत है, लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल में बेसिकली जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है, विच इज़ द ABC टेक्निक, इट्स बेसिकली टॉकिंग of different categories of raw material or items we have in our organization, of different inventories. We are talking of all those raw materials in terms of their value. For example, if I'm having the business to manufacture furniture, मैं फर्नीचर बना रही हूँ, और फर्नीचर में if I just talk of random raw materials which are being or things which are required is the timber, लकड़ी मुझे चाहिए, फेविकॉल चाहिए, पेंट चाहिए, पॉलिश चाहिए, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स मुझे चाहिए, मशीन्स चाहिए टू हैव सम काइंड ऑफ फर्नीचर, नेल्स चाहिए, उसमें थिनर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उसमें ज़रूरत है। और हर आइटम की जो क्वालिटी होगी, हर आइटम की जो रुपीज़ की टर्म्स में जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। जो मैंने एग्जांपल में अपने आइटम्स लिए, अब मैं अगर उसको क्लासिफाई करना शुरू करूँ, तो सबसे ज़्यादा महंगी जो आइटम है मेरे लिए इन सब रॉ मटीरियल्स की लिस्ट में, सबसे ज़्यादा महंगी है लकड़ी। अब मान लीजिए मेरा जितना भी रॉ मटेरियल है, 8-10 आइटम जो मैंने गिनाई हैं, या जो भी आप सोच सकते हैं फर्नीचर के लिए, वो सब चीज़ें बाहर लॉन में कहीं पे पड़ी हुई हैं, बारिश आ जाती है, धूप है, लकड़ी को अगर मुझे सुखाना है तब तो धूप में पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है वो, क्योंकि धूप में डाली हुई है सूखने के लिए। बारिश आ जाती है, अब लकड़ी अगर गीली हो गई तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसके लिए फिर फर्नीचर बनाने में या बाकी चीज़ों में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या मुझे लगता है कि वो ख़राब हो सकती है, मेरे क्योंकि काम की कम रह जाएगी, अगर वो गीली हो गई तो दिक्कत करेगी। बारिश में फेविकॉल पड़ा है, फेविकॉल का डिब्बा पड़ा है, पेंट का डिब्बा पड़ा है, उस पर पानी गिर रहा है, तो मेरा जो फोकस होगा सबसे पहले, वो फोकस किस चीज़ पे होगा, उस लकड़ी पे होगा कि भैया इसको उठाओ, अगर ये ख़राब हो गई तो ये बहुत महंगी है। फेविकॉल का डिब्बा अगर 10 ख़राब हो भी गए डब्बे, 15 डब्बे, 20 डब्बे, तो भी एक बार को नुकसान तो है, नो डाउट, एक डब्बे का भी नुकसान होगा तो नुकसान है, लेकिन कंपैरेटिवली जो कॉस्ट होगी नुकसान की वो कम होगी। तो मेरा फोकस हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है कि जिस आइटम के लिए मैंने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, जो आइटम मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, उस पर मेरा फोकस ज़्यादा है। तो दिस इज़ बेसिकली ABC टेक्निक इज। ABC एनालिसिस में वी आर टॉकिंग ऑफ, वी आर हैविंग द अटेंशन ऑन the कैफी। यू हैव आस्क्ड मी कि स्क्रीन शो नहीं हो रही है, कैन यू प्लीज, एनी वन ऑफ यू प्लीज लेट मी नो वाया द क्वेश्चन आंसर ऑप्शन कि आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माई स्क्रीन विद यू ऑल एंड आई अज्यूम दैट इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। Okay, now when we talk of the ABC technique, it's basically ABC, जो short form है, it's always better control. It's a technique used for the efficient management of inventory or the inventory control, and it is based on the value of the material. किसी भी मटेरियल की वैल्यू क्या है उस पर ये बेस्ड है, and this technique is analytical technique of stock control which aims at concentrating the efforts on those items which are high in value. Basically what I am saying is कि जो मेरी फोकस है, जो मेरी अटेंशन है, वो किस पे ज़्यादा है, उस आइटम पे जो ज़्यादा मेरे लिए एक्सपेंसिव है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। दिस इज़ ह्यूमन नेचर कि जो चीज़ ज़्यादा महंगी होगी उस पर ध्यान ज़्यादा होगा, जो सस्ती होगी उस पर कंपैरेटिवली ध्यान कम होता है।
This is the main psychology which is used in ABC technique. The technique is based on the premises that a small number of items in inventory may represent the bulk money. जो महंगी है वो हो सकता है आपके पास कम क्वांटिटी में हो, और जो आपके पास कम वैल्यू वाली है वो हो सकता है आपने ज़्यादा खरीद रखी हुई है, मे बी रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा है, या आपने वैसे ही बल्क क्वांटिटी में ले रखे कि चलो सस्ती तो है कोई बात नहीं मंगा रखी है. नाउ when we use this technique for the inventory management, all the stock, all the inventory items, all the items we have of inventory, they are being classified into 3 categories, A, B and C. ये 3 कैटेगरीज होती हैं. ये जो 3 कैटेगरीज होंगी, इसमें कैटेगरी 1 जो है वो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू वाली आइटम्स इंक्लूड करती है. तो अगर मैंने 10 आइटम्स गिनाई, 10 आइटम्स में मैंने क्या किया, 3 कैटेगरीज बनाई. एक कैटेगरी वो बनाई जिसमें सारी वो आइटम्स है जो बहुत महंगी है. एक कैटेगरी वो बनाई जिसमें वो आइटम्स डाली जिसकी वैल्यू बहुत कम है, जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, जो एक्चुअली सबसे सस्ती हैं. और एक मॉडरेट बनाई कि ना ही सस्ती हैं ना ही बहुत महंगी हैं, एट एवरेज रेट है, एवरेज कॉस्ट है. तो बेसिकली कैटेगरी ए इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द आइटम्स विच आर हाई इन वैल्यू and small in number. B includes the items which are of moderate value, and C is the value is less and number is high. Means number is high is quantity is more. Now this technique, ABC technique, suggests that the maximum attention or focus has to be paid to category A, which I already told you, जिसकी quantity कम है लेकिन value ज़्यादा है. तो value अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर नुकसान हुआ तो मेरा नुकसान ज़्यादा होगा. 10 डब्बे अगर थिनर के या पेंट के रखे भी हुए हैं तो वो नुकसान नहीं देंगे मुझे जितना, या अगर नेल्स रखी हुई हैं, खुली हुई रखी हैं, 2 किलो कील मैंने ऐसे डाल के छोड़ दी थी, बारिश आ गई, बारिश में वो भीग गई, ज़्यादा से ज़्यादा जंग लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगी, हो सकता है मैं यूज़ ना कर पाऊँ. 2 किलो कील 4 किलो कील से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक पीस अगर लकड़ी का ख़राब हो गया तो वो क्योंकि महंगी होगी, वो कॉस्टली होती है, तो मेरी जो टेंशन होगी दैट विल बी ऑन दैट पार्ट ऑफ द टिम्बर. तो ये वाली ये टेक्निक कहती है कि जो फोकस है वो अटेंशन आपने किसको दी है, जिस आइटम की वैल्यू ज़्यादा है. उसके बाद आपने उस आइटम पे फोकस रखा. सेकंड पे जो थोड़ी सी मॉडरेट वैल्यू रखती है, ओके टाइप है, एवरेज वैल्यू है, और सबसे कम आपने अटेंशन दी जिस पे वैल्यू सबसे ज़्यादा, कॉस्ट आपकी कॉस्ट वाइज या वैल्यू कंपैरेटिवली सबसे कम है. क्योंकि अगर वो चोरी हो गई, नुकसान हो भी गया, ख़राब भी हो गई, डैमेज भी हो गई, तो आपको उतनी टेंशन नहीं है. आपको नुकसान जो होगा वो होगा, नुकसान तो होगा लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा. एंड दीज आइटम्स आर लिस्टेड अकॉर्डिंगली in the organization, they are ranked in the descending order, showing the importance level of each and every item. तो कैटेगरी A, B, C के हिसाब से टोटल वैल्यू और टोटल क्वांटिटी आप दिखाते हैं. दिस इज दी only a random figure which is 70% of the total value, 20%, 10%, 10%, 30% and 60% of the total quantity we are talking of. This may vary according to the organization. This is only the illustrated figures. And when we are talking in terms of control, then the strict control or the main attention or focus will be there on the category A items because they are highly valuable to you. Then moderate control or moderate attention will be paid to the category B items, and less control or or you can say least attention will be paid to category C item. This is the ABC technique. If we show it graphically, this is how to just represent it graphically in chart form, where we are having on x-axis the percentage of total units and percentage of total values on y-axis, and you have the highest control for A, then B, and then C, and the units will be least for the items in list A. Then you will be having more than that, you will be having the units in B list, and the highest units of the raw material you will be having in your stock will be of the items you have in category C. Now when we are using this technique, ABC technique, it
The main advantages of implementing the technique is that you have the closer and stricter control on the items which are more valuable to you as compared to the lesser valued items, and it helps in reducing the wastage to certain extent. क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कीमती सामान को अगर नुकसान ले आपका चला गया हो तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, तो आपने जो कॉस्ट कंट्रोल भी कर रहे हो या वेस्टेज कर रहे हो, दैट इज ट्राइड टू बी मिनिमाइज्ड. Then you have selective control, which helps you in having higher stock turnover rates. क्योंकि अगर हाई वैल्यू वाला स्टॉक खराब हो जाता है तो स्टॉक टर्नओवर रेट वुड बी lesser, and by having the ABC technique you can minimize the risk of obsolescence also, and you have the better utilization of the funds which are invested in the inventories. This was the ABC technique. I hope this technique is clear to you all. Then the second technique सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू वाली आइटम्स इंक्लूड करती है. तो अगर मैंने 10 आइटम्स गिनाई, 10 आइटम्स में मैंने क्या किया, 3 कैटेगरीज बनाई. एक कैटेगरी वो बनाई जिसमें सारी वो आइटम्स है जो बहुत महंगी है. एक कैटेगरी वो बनाई जिसमें वो आइटम्स डाली जिसकी वैल्यू बहुत कम है, जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, जो एक्चुअली सबसे सस्ती हैं. और एक मॉडरेट बनाई कि ना ही सस्ती हैं ना ही बहुत महंगी है, एट एवरेज रेट है, एवरेज कॉस्ट है. तो बेसिकली कैटेगरी ए इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द आइटम्स विच आर हाई इन वैल्यू एंड स्मॉल इन नंबर. B includes the items which are of moderate value, and C is the value is less and number is high. Means number is high is quantity is more. Now this technique, ABC technique, suggests that the maximum attention or focus has to be paid to category A, which I already told you, जिसकी quantity कम है लेकिन value ज़्यादा है. तो value अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर नुकसान हुआ तो मेरा नुकसान ज़्यादा होगा. 10 डब्बे अगर थिनर के या पेंट के रखे भी हुए हैं तो वो नुकसान नहीं देंगे मुझे जितना, यार अगर नेल्स रखी हुई हैं, खुली हुई रखी हैं, 2 किलो कील मैंने ऐसी डाल के छोड़ दी थी, बारिश आ गई, बारिश में वो भीग गई, ज़्यादा से ज़्यादा जंग लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगी, हो सकता है मैं यूज़ ना कर पाऊँ. 2 किलो कील 4 किलो कील से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक पीस अगर लकड़ी का ख़राब हो गया तो वो क्योंकि महंगी होगी, वो कॉस्टली होती है, तो मेरी जो टेंशन होगी दैट विल बी ऑन दैट पार्ट ऑफ द टिम्बर. तो ये वाली ये टेक्निक कहती है कि जो फोकस है वो अटेंशन आपने किसको दी है, जिस आइटम की वैल्यू ज़्यादा है. उसके बाद आपने उस आइटम पे फोकस रखा. सेकंड पे जो थोड़ी सी मॉडरेट वैल्यू रखती है, ओके टाइप है, एवरेज वैल्यू है, और सबसे कम आपने अटेंशन दी जिस पे वैल्यू सबसे ज़्यादा, कॉस्ट आपकी कॉस्ट वाइज या वैल्यू कंपैरेटिवली सबसे कम है. क्योंकि अगर वो चोरी हो गई, नुकसान हो भी गया, ख़राब भी हो गई, डैमेज भी हो गई, तो आपको उतनी टेंशन नहीं है. आपको नुकसान जो होगा वो होगा, नुकसान तो होगा लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा. एंड दीज आइटम्स आर लिस्टेड अकॉर्डिंगली in the organization, they are ranked in the descending order, showing the importance level of each and every item. तो कैटेगरी A, B, C के हिसाब से टोटल वैल्यू और टोटल क्वांटिटी आप दिखाते हैं. दिस इज दी only a random figure which is 70% of the total value, 20%, 10%, 10%, 30%, and 60% of the total quantity we are talking of. This may vary according to the organization. This is only the illustrated figures. And when we are talking in terms of control, then the strict control or the main attention or focus will be there on the category A items because they are highly valuable to you. Then moderate control or moderate attention will be paid to the category B items, and less control or or you can say least attention will be paid to category C item. This is the ABC technique. If we show it graphically, this is how to just represent it graphically in chart form, where we are having on x-axis the percentage of total units and percentage of total values on y-axis, and you have the highest control for A, then B, and then C, and the units will be least for the items in list A. Then you will be having more than that, you will be having the units in B list, and the highest units of the raw material you will be having in your stock will be of the items you have in category C. Now when we are using this technique, ABC technique,
the main advantages of implementing the technique is that you have the closer and stricter control on the items which are more valuable to you as compared to the lesser valued items, and it helps in reducing the wastage to certain extent. क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कीमती सामान को अगर नुकसान ले आपका चला गया हो तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, तो आपने कॉस्ट कंट्रोल भी कर रहे हो या वेस्टेज कर रहे हो, दैट इज ट्राइड टू बी मिनिमाइज्ड. Then you have selective control, which helps you in having higher stock turnover rates. क्योंकि अगर हाई वैल्यू वाला स्टॉक खत्म खराब हो जाता है तो स्टॉक टर्नओवर रेट वुड बी lesser, and by having the ABC technique you can minimize the risk of obsolescence also, and you have the better utilization of the funds which are invested in the inventories. This was the ABC technique. I hope this technique is clear to you all. Then the second technique we are talking of, or we have to do, is the different kind of stock levels. That's just wait for a while. क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है. नितिका, यू हैव सेड कि क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है. फ्रॉम माय एंड देयर इज नो प्रॉब्लम. I think some students, they are not getting my sound properly. I think now they must be getting. I don't know what actually the problem is, but you just let me know in case some voice problem is there from my end to you all. Now let's continue. The next technique we have is the stock level setting. Stock level setting technique is basically the system where we are calculating different levels of stock for different purposes. The main objective of any inventory control system is that we want to avoid the situations of understocking or overstocking of raw material, and that is why we are calculating different kind of stock levels to be maintained, or we to be maintained तो नहीं कह सकते, but we are talking of different kind of levels of stock which may take into considerations for all the kind of calculations of stock we should maintain in the organization. Where we talk of the level of the stock which should be maintained every time in the organization, it is talking of the number of units which should be ordered uh, so that we have the most economical price or most economical cost. We can have the we can minimize the ordering cost, or maintenance cost, or storage cost, or buying cost, or at the time of purchase of raw materials, apart from the situation of overstocking and understocking of the material. We have different levels, and each item of inventory is automatically taken care of at all these different levels. And these levels we are talking of they are not permanent in nature. They totally they are dependent on the size of the factory, the number of units which are being manufactured by the organization. In case I'm talking of a particular level of output, and we have set the stock levels, different stock levels, then it will automatically get changed in case I'm changing the number of units to be manufactured. मैंने levels set किए हैं जिसमें कि जो मेरा फोकस है आउटपुट पे 50,000 यूनिट्स का है. मैंने उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशंस की. द मोमेंट आई चेंज दिस 50,000 यूनिट ऑफ आउटपुट,
let's say to 60,000 or to 40,000, automatically all the levels should have also are supposed to be changed accordingly. अब इसमें जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग हम लेवल्स की बात कर रहे हैं, आई जस्ट नेम ऑल दीज लेवल्स आफ्टर डिस्कसिंग द फैक्टर्स. वी हैव डिफरेंट लेवल्स, वी हैव टू फिक्स दोज लेवल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स इम्पैक्ट द फिक्सेशन ऑफ द लेवल्स वी आर टॉकिंग ऑफ. ठीक है, जिसमें जो हमारे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक, हमारे रॉ मटेरियल के आइटम्स कितने हैं और उनको हम कंज्यूम किस रेट पे कर रहे हैं. तो जो प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन के हिसाब से हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन है. द मोर प्रोडक्शन विल बी देयर, द मोर कंजम्पशन विल बी देयर. और एक आउटपुट को बनाने के लिए हाउ मेनी यूनिट्स आर बीइंग रिक्वायर्ड ऑफ ईच एंड एवरी आइटम. तो वी आर टॉकिंग ऑफ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल्स वी हैव. उसके अलावा में जब हम अलग अलग लेवल्स की बात करते हैं तो उसमें हमें ऑर्डर भी बात कर रहे हैं कि भाई हमें ऑर्डर कब प्लेस करना है. आज मान लीजिए मैंने ऑर्डर प्लेस किया, एक ये कैलकुलेशन है. मैंने जब आज ऑर्डर प्लेस किया, आई मे गेट रिसीव दैट ऑर्डर टुडे इटसेल्फ and it may be delivered tomorrow, it may be delivered day after tomorrow, it may be 15 days, it may be 1 month, depending on the situation. So that time period between the order when it is being placed and the time when the order has been delivered to you. मैंने आज 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया है, तो उस टाइम से जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया उसके बाद वो टाइम शुरू हुआ और वो ख़त्म कब हो रहा है? जब मैंने वो ऑर्डर रिसीव किया. ये जो टाइम पीरियड है, दिस इज नोन एज द लैग टाइम, LAG, लैग टाइम, और द लीड टाइम. You all can see on the screen it's written lead time, or you can say lag time, LAG. ये आपका जो टाइम पीरियड होता है, ये होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम व्हेन द ऑर्डर इज बीइंग प्लेस्ड and it's ending at the time when the order is being received. तो मान लीजिए मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और मेरे पास ऐसा सप्लायर है जिसको मैंने अभी ऑर्डर किया, अब वो मुझे 10 ही मिनट में रॉ मटेरियल सप्लाई कर देता है. तो व्हाट विल हैपन? इसका मतलब अगर मैं अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मैं सिर्फ इसी फैक्टर को अगर देखूं, तो फिर तो हो सकता है कि मैं सोचूं यार मैं जब भी ऑर्डर करती हूँ 10 मिनट में मेरे पास रॉ मटेरियल आ जाता है, मैं स्टॉक को अपने पास रखूँ ही क्यों? मुझे तो सिर्फ 10 ही मिनट चाहिए ना, 10 क्या आप 20 मिनट मान लो, 1 घंटा मान लो ज़्यादा से ज़्यादा. तो मुझे ऑर्डर जब प्लेस करूँगी तो 10 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा, तो आई नीड नॉट मेंटेन द रॉ मटेरियल स्टॉक विद मी. तो मैं उसमें पैसा लगा के क्यों छोड़ूँ? मैं पैसा ब्लॉक ही नहीं करती. अगर मुझे पता है कि 1 हफ्ता लगेगा, अब मुझे प्रोडक्शन भी कंटिन्यूस करनी है, तो मैं इतना स्टॉक मेंटेन करके रखूँगी कि मैंने अगर आज एक टाइम पे ऑर्डर प्लेस किया है और 1 हफ्ता मिनिमम लगता है, तो कम से कम मेरे पास उतना स्टॉक होना चाहिए कि वो 1 हफ्ता मेरा प्रोडक्शन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए. और 1 हफ्ते से हो सकता है मैं हफ्ता भर मान के चल रही हूँ, तो 10 दिन का स्टॉक अपने पास रख रही हूँ, अज्यूमिंग द सिचुएशन थोड़ी सी कि अगर 1-2 दिन इधर उधर हो गया तो दिक्कत ना हो. तो इस तरह से जो टाइम लैग होता है, लीड टाइम जो होता है, वो भी आपके लिए बहुत स्पेशल होता है, जिसकी वजह से आप कब ऑर्डर कर रहे हैं, कितनी यूनिट्स का कर रहे हैं, इट डिपेंड्स, इट प्लेज रोल. द लीड टाइम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंसिडरेशन. इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? अब मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं, व्हाट विल आई डू? मैं उसके हिसाब से मंगाऊंगी कि भाई जितनी मुझे ज़रूरत है, कब ज़रूरत पड़ेगी और कितना ऑलरेडी है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस है ही नहीं कि मैं एक्स्ट्रा मंगा के रख लूँ. तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा. और अगर एक्स्ट्रा कैपेसिटी है भी और मैंने एक्स्ट्रा मंगा के रख लिया, तो मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि ख़राब ना हो जाए रखा हुआ. क्यों? क्योंकि कॉस्ट भी लगेगी. स्टोरेज का एरिया तो मेरे पास है, लेकिन अगर स्टोर करके मंगा के रख भी लूँ मैं पहले, और वो यूज़ अगर 6 महीने बाद होना है, तो व्हाट विल हैपन? जो स्टोरेज कॉस्ट मैं बेयर कर रही हूँ, हो सकता है वो ज़्यादा महंगा ही पड़ जाए, मैं बाद में ही मंगा लेती. All these factors are to be taken care of. इसके अलावा में you have the risk of loss due to deterioration or theft or any kind of damage or destruction which may be there to the raw material. इसके अलावा में you are talking of the purchase of raw material, that means the funds will be blocked. Then you must have the availability of the funds to be invested in the inventories. आपके पास अगर पैसा ही नहीं है ज़्यादा ब्लॉक करके रखने के लिए, तो भी आपके लिए दिक्कत है. आप कहोगे कि भई अभी तो मुझे चाहिए लेकिन मैं मंगा ही नहीं सकती, रॉ मटेरियल है नहीं.
तो आप ये भी देखोगे कि आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी किस तरह से कैसे है. Then you have seasonal factors which impact the different stock level settings. We may have different kind of materials which are seasonally available at different prices. अगर season के out of season अगर मैं कोई ऑफ सीजन अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करूंगी तो दैट विल बी कॉस्टली फॉर मी. मैं सीजन में लूंगी तो कंपैरेटिवली चीप मिल जाएगा. तो दिस इज हाउ इफ आई जस्ट यू नो manufacture, or if I just make available some kind of product, or raw material if it is required, so I may wait for the season so that it can be cheap if it is possible for me. Apart from all these, there will be fluctuations in the market, prices of different items, inflation deflation का भी impact आता है. You have to take care of all these factors in different stock level setting. Now coming to the different levels we are talking of, the first stock level is the maximum stock level. Now the maximum stock level, basically as the name suggests, what is the maximum level? Maximum level is the level of stock of inventory which should be at maximum any time. Basically when we are purchasing the stock, we are having inventory, मैक्सिमम लेवल वो लेवल होगा जो हम सेट करेंगे जिससे ज़्यादा हम स्टॉक में रखेंगे ही नहीं, अदरवाइज हमें वो कॉस्टली पड़ेगा, हमें नुकसान हो सकता है, वेस्ट हो सकता है कि वो डैमेज होना शुरू हो जाए, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा में ब्लॉक हो जाए, ओवर स्टॉकिंग हो जाए. तो मैक्सिमम लेवल एक वो लेवल आप मेंटेन कर रहे हो कि जिससे ज़्यादा हम एक भी यूनिट एक्स्ट्रा इन्वेंट्री की रखेंगे ही नहीं, अदरवाइज दैट विल लीड टू द ओवर स्टॉकिंग ऑफ द रॉ मटेरियल. And when we set this maximum level, it is reorder level. These all are supposed to be थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा समझने के साथ में. मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक इज रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. अब ये होते क्या है ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. ये चार चीज़ें हैं क्या, रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, मिनिमम कंजम्पशन क्या है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है. एज द नेम सजेस्ट, रीऑर्डर लेवल वो लेवल होगा जो हम जिस लेवल पे जाकर ऑर्डर प्लेस करेंगे. रीऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी का कर रहे हैं. मिनिमम कंजम्पशन हम कितनी कर रहे हैं हर टाइम. मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है कि हम नॉर्मली कम से कम कितना टाइम में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. तो दीज आर हाउ वी कैलकुलेट, विल आर डिस्कसिंग राइट नाउ. नाउ मिनिमम स्टॉक लेवल इज, मैक्सिमम लेवल तो वो है जिससे ज़्यादा हम रखेंगे नहीं. ऐसे ही मिनिमम स्टॉक लेवल है जिससे कम नहीं रखेंगे, जिससे कम में अगर आएगा तो हमें किसी तरीके से दिक्कत हो सकती है. तो इट्स बेसिकली द लेवल ऑफ स्टॉक विच द इन्वेंट्री शुड नॉट बी लेसर देन दैट. इट इज़ बेसिकली अज्यूम्ड टू बी द सेफ्टी स्टॉक एंड इट्स नॉट नॉर्मली टच्ड. तो कोशिश हर कोई ये करता है कि मिनिमम स्टॉक लेवल तक ना पहुँचे, उससे पहले ही आप कहीं ना कहीं अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. क्यों? क्योंकि इस लेवल तक अगर आप आ गए या इससे नीचे अगर गलती से चले गए तो देयर मे बी सिचुएशन व्हेन you may have a negative impact on the production process. It may be possible कि प्रोडक्शन कम हो या प्रोडक्शन ना हो, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है. डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, हर जगह सेम चीज़ें नहीं होती हैं. तो मैक्सिमम लेवल वो है जिससे ज़्यादा कंपनी नहीं रखेगी क्वांटिटी अपने पास इन्वेंट्री की. मिनिमम लेवल वो स्टॉक है जिससे नीचे कंपनी चाहती नहीं है. ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि जा नहीं सकती, लेकिन जाएगी तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है प्रोडक्शन पे. मिनिमम लेवल की जब हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो मिनिमम स्टॉक लेवल इज बेसिकली द रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. एंड इन केस you don't have any information regarding normal consumption and normal reorder period, then you take the average consumption and average reorder period depending on the information which is there in the question. Then you have reorder level. Reorder level क्या होता है? It is the level of inventory at which the fresh order is to be placed. ये सब आपको theoretically फॉर्मूले आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे. उसके अलावा theoretically हर चीज़ से नाम से समझ में आ जाएगा. रीऑर्डर लेवल का मतलब है वो लेवल स्टॉक का जब आप एक नया ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं.
एंड दिस लेवल, अगर मैं अभी इसको आपको ग्राफ के हिसाब से दिखा दूंगी कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, मैक्सिमम लेवल वो हो गया जिससे ऊपर नहीं आप जाओगे, मिनिमम लेवल वो है जिससे नीचे आप आना नहीं चाहते, जिसको आप टच नहीं करना चाहते हो। एग्जैक्टली सिचुएशन क्या होगी, टोटली डिपेंड्स, जा सकता है कभी वो सिनेरियो में, लेकिन कोशिश कंपनीज की ये रहती है कि वो इस लेवल तक ना आए। रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जब कंपनी नया ऑर्डर प्लेस कर रही है, तो लॉजिकली इट विल बी the level will be between the maximum level and minimum stock level. अब इसका जो फॉर्मूला है that is basically the reorder level is equals to maximum consumption into maximum reorder period and the average stock level. Next is average stock level. Average stock level is the level of stock which generally on an average maintained by the firm. रीऑर्डर लेवल वो है जब हम एक नया ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। एवरेज स्टॉक लेवल वो लेवल है जो ज़्यादातर कंपनीज मेंटेन करके रखती हैं। अब हमने 4 पढ़े, एक मैक्सिमम लेवल जिससे ज़्यादा कंपनी रखेगी ही नहीं, मिनिमम लेवल जिससे कम पे नहीं जाएगी, रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जिस पे कंपनी ऑर्डर प्लेस करेगी, एवरेज स्टॉक लेवल वो है जिस पे कंपनी ज़्यादातर अपना स्टॉक मेंटेन करके रखती है। तो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द मैक्सिमम लेवल मेंटेन्ड बाय द कंपनी, we are not saying that the minimum order which is minimum level which is maintained, मिनिमम है ही है, मैक्सिमम टच कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज एवरेज लेवल कोई अपना कैलकुलेट कर लेती हैं जो कि नॉर्मली कंपनीज मेंटेन करके रखती हैं, विच इज़ द मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी, और you can calculate it half of the maximum stock level plus minimum stock level। तो एवरेज कर दिया उन्होंने कि हम एवरेज रख रहे हैं, ना हम मैक्सिमम के चक्कर में पड़ रहे हैं ना हम मिनिमम के चक्कर में पड़ रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल विच इज़ द डेंजर लेवल। अब डेंजर लेवल का क्या मतलब होगा, मैंने आपसे कहा मिनिमम स्टॉक लेवल वो स्टॉक लेवल है जो कंपनी कम से कम रखेगी, और कंपनी जब यूज़ कर रही है तो उसे नीचे या मिनिमम लेवल को टच नहीं करना चाहती, कंपनी उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखती है। तो वो एक एवरेज मेंटेन कर रही है या एक नॉर्मल लेवल मेंटेन कर रही है विच इज़ बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। डेंजर लेवल वो लेवल है, डेंजर का मतलब है खतरा, इसका मतलब कंपनी ने जो मिनिमम लेवल था वो तोड़ दिया, वो यूज़ कर चुके हैं, इसका मतलब वो डेंजर पे पहुंच गए। डेंजर का मतलब है कि कम डेंजर, अब डेंजरस लेवल क्या होगा, वो लेवल होगा जहां अगर कंपनी चली गई तो वो इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई, अगर उसके बाद भी उसको यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि अब स्टॉक बेसिकली आप आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हो, आपकी प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो इट्स बेसिकली द लेवल वी आर टॉकिंग ऑफ which is below which the stock should not be allowed to fall except under emergency conditions। अगर आपने और यूज़ किया then what will happen, the emergent or the urgent action has to be taken for the purchase of raw material, otherwise the the production will be either stopped or it will be having a major negative impact। so this level may be fixed above the minimum level or below the minimum level depending upon the nature or thinking of the management। ये आप चाहे, जैसे मैंने अब आपको थ्योरेटिकली बताया कि मिनिमम लेवल वो है जो कंपनी मेंटेन करके रखेगी ही रखेगी, लेकिन कंपनी टेक्निकली उसको अटेन नहीं करना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा ही कंपनी कम से कम रखना चाहती है, क्योंकि मिनिमम से नीचे जाते ही आपके लिए रिस्की जोन हो जाता है, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आ जाता है। अब कंपनी हो सकता है एक सेफर साइड पर रहने के लिए जो डेंजर लेवल है उसको मिनिमम लेवल से ऊपर रख लेती है। मान लीजिए अगर मैंने 1000 यूनिट मिनिमम लेवल का रखा, तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि 1000 लेवल से अगर नीचे गए तो कंपनी की प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मैंने क्या किया, डेंजर लेवल को सिर्फ अपनी सहूलियतों, अपनी सोच के हिसाब से व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं मिनिमम लेवल पर जाऊँ, फिर उसे नीचे डेंजर लेवल रखूँ, तो इसका मतलब प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ ही जाएगा। तो व्हाट आई मे डू इज़ कि मुझे लगता है कि नहीं, आपको एक, जब आप कंजम्पशन हम कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, तो मिनिमम लेवल तक पहुंचने से पहले एक अलार्म बज जाना चाहिए कि भाई अब तो आपको खतरे की घंटी है, आपको रॉ मटेरियल को ऑर्डर कर देना चाहिए, अदरवाइज द प्रोडक्शन में हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो मैंने क्या किया है, डेंजर लेवल को मिनिमम लेवल से ऊपर रख दिया कि मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि मिनिमम लेवल टच होने वाला है, तो अब आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। एंड समटाइम्स दी मैनेजमेंट इज़ कूल इनफ कि वो कहते हैं नहीं, मिनिमम लेवल तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके बाद में रखेंगे डेंजर लेवल कि नहीं, अब हमारे लिए इट्स द टाइम ऑफ अलर्ट।
तो danger level depending on the nature of the management may be fixed above or below the minimum level. Now danger level is normal consumption into maximum reorder period under emergency conditions. Now this is the graphical representation on the charts. On x-axis it's the time and the quantity is on the y-axis कि आपने कितना लेवल कितने यूनिट्स आपने कि कब आप हमें ऑर्डर प्लेस करना है, कितना ऑर्डर है, तो मैक्सिमम लेवल जो भी आप कैलकुलेशंस करेंगे अकॉर्डिंगली इट विल बी प्लेस्ड ऑन दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चार्ट्स में आप उसको रखेंगे. मैक्सिमम लेवल भी सबसे ज़्यादा ऊंचा लेवल पे होगा कहीं ना कहीं, मिनिमम लेवल विल बी लेसर देन दैट, reorder level will be in between these two levels, and you'll be for example if I'm just maintaining in the starting of the month, let's say मैं इसको मंथली इसका अगर मैं प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक बना रही हूँ तो मैंने महीने के स्टार्टिंग में मैक्सिमम लेवल मेंटेन करके रखा कि भाई अगर मान लीजिए 800-900 यूनिट्स का मेरे पास maximum level मैंने calculate किया and I have purchased that level. I start using that. So what happens when I start using this? This will reduce. ये धीरे 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 जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है x axis पे, what happening is I have started using the raw material and it's reducing. तो मैक्सिमम लेवल से शुरू अगर मैंने किया तो मैक्सिमम लेवल मेंटेन करा और उसके बाद मैंने उसको धीरे 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 यूज़ करना शुरू कर दिया. अब मेरे लिए दिक्कत कहाँ तक आएगी, मैं टच कहाँ करना चाहती हूँ, सिर्फ मिनिमम लेवल तक. लेकिन मिनिमम लेवल से ही पहले व्हाट आई विल डू इज़ मैं रीऑर्डर लेवल बना दूंगी कि मुझे कहाँ पर रीऑर्डर प्लेस करना है. क्यों? क्योंकि मैं मैक्सिमम मिनिमम लेवल तक जा सकती हूँ, उससे नीचे नहीं. अब मान लीजिए मैं मिनिमम लेवल आया मेरा 300 थर्ड वीक में, तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर प्लेस करती तो व्हाट वुड हैव हैपन, एक हफ्ता मुझे लगता है ऑर्डर डिलीवरी रिसीव करने में, तो एक हफ्ते तक मैं प्रोडक्शन कैसे करूँगी, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं पहले ही ऑर्डर प्लेस करना था. नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच विल बी देयर विल बी द लीड टाइम कि कितना है, तो उसके हिसाब से मेरी जो कंसिडरेशंस होंगे अलग अलग फैक्टर्स की, उसके हिसाब से रीऑर्डर लेवल विल बी इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल, सो दैट एट अ पर्टिकुलर लेवल. अब इसके हिसाब से अगर 500 यूनिट का था कि जैसे ही मेरा जो कंजम्पशन हो रहा है यूनिट्स का 800-900 से मैं 500 पे आ जाऊंगी, तो व्हेन आई हैव 500 यूनिट्स इन माय वेयर हाउस आई नीड टू प्लेस द ऑर्डर सो दैट वो 500 से 300 पे जैसे ही, मतलब मैं अगर धीरे धीरे आ जाऊंगी, by the time I'm reaching the minimum level, I'll be receiving the delivery of new goods and my stock again will be 900 and then again I'll start using. फिर 500 पे मैं ऑर्डर कर दूंगी तो 300 तक आते आते मेरे पास फिर वापस स्टॉक हो जाएगा. इस तरह से आपका ये इकोनॉमिक आपकी जो डिफरेंट लेवल ऑफ you have stocks, they work accordingly, and all these levels differ from organization to organization. It depends on the mentality of the management, how they work. Okay, theoretically I assume this is clear. Just quickly I'll just take 2 more minutes to just discuss one example with you all. Minimum consumption is there, minimum usage is 150 units per week is given to you, maximum consumption is 450 per week, normal usage is also there, reorder quantity, reorder period, and you have to calculate different stock levels. तो आपको ये फॉर्मूले थोड़े से याद रखने पड़ेंगे. Now we have to calculate the first the reorder level. Reorder level is maximum consumption and minimum reorder period, which is 450 and 5 weeks. ये आपको दिया हुआ था. तो रीऑर्डर लेवल जो आपके लिए आया वो 2250 यूनिट्स का था. इसका मतलब जब आपकी जो यूनिट्स आपके पास हैं उसमें 2250 यूनिट्स आपके पास स्टॉक में होंगी, तब आप नया ऑर्डर प्लेस करेंगे. मिनिमम लेवल था, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. अब यहाँ पे रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया 2250, उसके बाद हमने इसमें किया नॉर्मल कंजम्पशन प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. 150 नॉर्मल कंजम्पशन या मिनिमम यूसेज जो आपको दिया हुआ था इनटू द नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, विच इज 3
वीक्स, 3 to 5 वीक्स वाला जो रीऑर्डर पीरियड था उसमें जो मैक्सिमम वाला होगा दैट विल बी द नॉर्मल। हम मैक्सिमम 3 से 5 हफ्ते लग रहे हैं तो हम मैक्सिमम मान के चल रहे हैं कि 5 हफ्ते आपको मिल जाएंगे। दिस इज हाउ यू कैलकुलेटेड। I hope we can skip these questions because you can try to solve these questions using different kind of formulas. Next time we'll discuss in our next lecture economic order quantity and the different टेबुलर फॉर्म में जो हम कैलकुलेशंस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए, जो हम फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टू बी शोन इन डिफरेंट अकाउंट्स। So this will be discussed in our next class, which will be on Tuesday. I hope. Okay, दिस सब्जेक्ट इज बेसिकली थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। जैसे आपका फाइनल अकाउंट्स था, एग्जाम में आपको थ्योरी भी आएगी और प्रैक्टिकल भी आएगा। नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर हम खत्म करेंगे विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लीफो फीफो एंड डिफरेंट सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज के हिसाब से विल डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। And in case you have any doubt, you can ask me, else we can continue our lecture in our next class. For books, you can have the book by Dr. M.N. Arora. Along with your study material you have received from the SOL, or I think they have uploaded on the website also. You can refer to those material along with this book. And in case you don't find the book by M.N. Arora, then you can have Maheshwari and Mittal, S.P. Jain and Narang is also there. You can have any book. It totally depends कि you need to clear the concepts, and I hope कि अभी तक आप लोगों को lectures में कोई problem नहीं है. I tried my best to make the concepts clear to you all. Okay, now no more questions from your side, and we can continue our lecture on Tuesday. Till then, take care. Bye bye.